بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، فقد اطاع الرسول، اس نے رسول کی اطاعت کی۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہر اس کام سے منع کیا ہے جو کام ہمیں جہنم تک لے جائے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے سنت اور سنت کے اپوزٹ میں ہے بدعت۔ ان دونوں کے مطلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جسے کرنے سے ہم گناہ میں آ سکتے ہیں، اور جسے کرنے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بہت اچھا ہے، وہ ہماری عقل اسے اچھا سمجھتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ دین ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ جسے نبی نے اچھا کہا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا بتایا ہو، وہ کام ہے دین کا۔ جسے ہمارا عقل اچھا بولے وہ دین کا کام نہیں ہو سکتا، وہ دین کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ جسے ہماری عقل اچھی بولتے ہیں اور اچھا سمجھتی ہے، اسے ہم دین کا طریقہ سمجھتے ہیں، اور جسے ہماری عقل اچھا نہیں بولتی اور اچھا نہیں سمجھتی، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا طریقہ ہے۔ اصل مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ آج خلاصہ کر دوں گا کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین بات اللہ کے کتاب کی بات ہے۔ کس کی بات؟ بہترین بات اللہ کے کتاب کی بات ہے۔ وَخَيْرُ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ یقین کرتے ہیں اس پر؟ بہترین بات کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ اور بہترین راستہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین کے اندر سب سے بری چیزیں وہ ہیں جس کو ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، اپنی طرف سے بنا لیا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نیا کام دین کے اندر گمراہی کا کام ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا یہ گمراہی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ تہدی الی النار، ہر دین کے اندر نئی بات اور دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا، نئی چیزوں کو شامل کرنا، یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے۔ ہر گمراہی جہنم تک لے جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس بات کو سمجھیے گا آپ حضرات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین کے اندر نئی نئی باتوں کو پیدا کرے۔ مثال کے طور پر دین کے اندر نئی بات کی مثال دیتا ہوں میں۔ مغرب کی نماز کتنے رکعت ہے؟ بولو، 3 رکعت ہے۔ میں بولا نہیں جی مجھے 4 رکعت پڑھنا اچھا لگتا، میں 4 پڑھنے والا۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کتنی رکعت اچھی لگ رہی؟ 4 رکعت اچھی لگ رہی جی، میں کتنے رکعت پڑھنے والا؟ 4 رکعت پڑھنے والا۔
यही है दीन के अंदर नई चीज पैदा करना। जो मुझे अच्छा लगता है वो दीन नहीं है, जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा बताया वो दीन है। अब हमारी नमाज़े जनाजा है, नमाज़े जनाजे में सजदा है, रुकू है, रकाते हैं, कितनी तकबीरा हैं? खाली 4 तकबीरा हैं। नहीं जी, मुझे जरा अच्छा लग रहा ये नमाज में मैं रुकू भी करने वाला, सजदा भी करने वाला, बोले तो यही कहते हैं दीन के अंदर नई चीज को शामिल करना, नई चीज को पैदा करना। तरीका नमाज जनाजा का क्या है? 4 तकबीरात के साथ पढ़ेंगी दुआ इस मैयत के लिए, वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। नहीं, मैं इसके अंदर 4 रकात पढ़ूंगा, हर रकात में सजदा करूंगा। तो ये दीन के अंदर नई बात हुई, ये पसंद नहीं है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद नहीं। बोलो किसके समझ में बात आई? दीन के अंदर नई बात पैदा करना का तो ऐसा है। इसी को कहते हैं गुमराही और जलालत और बिदात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबग़ज़ुन नासी इलल्लाहि सलासा, अल्लाह को 3 लोग पसंद नहीं है। कितने लोग? 3 लोग। उसमें से एक वो आदमी भी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व मुब्तगिन फिल इस्लामी सुन्नतल जाहिलिया, दीन के अंदर और दीन के तरीके में जहालत के तरीके को पसंद करने वाला, तलाश करने वाला। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए रबीउल अव्वल के महीने में, और इंतकाल भी किस महीने में हुआ? रबीउल अव्वल के महीने में हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी रबीउल अव्वल के महीने में मिली। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन अल्लाह के नबी की बेटी हजरत फातिमा ने भी नहीं मनाया मिलाद। ठीक है, अल्लाह के नबी के साथ रहने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नहीं मनाया। ज्यादा हकदार कौन थे? हमें क्या उन्हों? दीन को ज्यादा कौन समझे थे? उन्हों क्या हमें? बताओ। जो हुजूर के साथ रहते थे उन्हों दीन को ज्यादा समझे थे कि हमें दीन को ज्यादा समझे? बताओ, जवाब दो, जवाब चाहिए। ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये टॉपिक सुन्नत की है और बिदात की है। हमारे नबी के साथ रहने वाले सहाबा ने कभी नहीं मनाया। खुद नबी की बेटी हजरत अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और खुद नबी की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी नहीं मनाया। तो ये जो हमें मना रहे हैं ना, ये बिदात है। इसी को क्या कहते हैं? बिदात। यही काम किसको पसंद नहीं है? अल्लाह को भी पसंद नहीं है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरा पैदाइश का दिन है, मैं मनाना क्या बाजू वाला मनाना? बोलो जी, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मैं मनाना क्या बाजू वाला मनाना? मेरी पैदाइश का दिन मैं मनाना। हुजूर की पैदाइश का दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल की जिंदगी में कभी नहीं मनाया। तो जब खुद का उन्होंने नहीं मनाया है तो उनका हमें कैसा मना सकते हैं? इस बात को समझो, लॉजिकली बातें हैं। जो नबी बोले वो करो, जो नबी करे वो करो, इसको दीन कहते हैं। जो नबी नहीं बोले उसे करना, इसे बिदअत कहते हैं। नबी के दौर में साहबा ने जिस काम को नहीं किया और साहबा ने न करने का हुक्म दिया न नबी ने करने का हुक्म दिया, उसको करना, इसको बिदअत कहते हैं। आई बात समझ में? और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का लेकर जाती है, जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लयातियन्न अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़्व वन-नअल बिन-नअल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिका। लोग एक दूसरे की देखा देखी के करने में इतने अंधे बन जाएंगे, इतने अंधे बन जाएंगे। फरमाया कि बनी इसराइल में एक उम्मत थी, ये मेरी उम्मत में एक लोग ऐसे आएंगे जो बनी इसराइल की तरह होंगे। बनी इसराइल की तरह मतलब क्या?
बनी इसराइल के लोगों ने अपनी नबी की बात की हमेशा मुखालिफत की है। जो नबी ने बताया था, बनी इसराइल में जितने नबी आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, हजरत शमूएल हो, हजरत हिजकील हो, जितने भी नबी आए, हर नबी की बात का उनकी उम्मत ने क्या किया? इख्तिलाफ किया। यहां तक के इख्तिलाफ में इतने अंधे बन गए, नबी का तरीका उन्हें रास नहीं आया उस दौर के। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में यानी उम्मत मुहम्मदिया में कुछ लोग ऐसे होंगे, देखा देखी के करने में, अगर किसी ने बनी इसराइल की उम्मत में से, कौम में से किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया है, तो देखा देखी में आगे चलने पीछे चलने में लोग इतना अंधे हो जाएंगे कि ये लोग अपनी माओ से भी जिना करेंगे। बिदअत में इतने लोग अंधे बन जाएंगे। और आगे फरमाया, मेरी उम्मत के 72 तबके हैं। कितने? मेरी उम्मत के 72, बनी इसराइल के 72 तबके थे, 72 फिरके थे। मेरी उम्मत के 73 होंगे। और वो तबका कामयाब होगा, वो फिरका कामयाब होगा जो क्या होगा? मिल्लतन वाहिदा, एक नबी की मानकर चलने वाला और एक कुरान की मानकर चलने वाला होगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 73 तबके होंगे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 73 में से एक फिरका क्या होगा? कामयाब होगा। वो कौन है? बोले अल्लाह के नबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो तरीका मेरा है और मेरे सहाबा का है, उस तरीके को इख्तियार करने वाले लोग क्या होंगे? कामयाब होंगे। ये जो मिलाद का तरीका है ना, ये हमारा नहीं है, इसको सुन लो आप। ये तरीका जो है ना, ये सुन्नत से हटा हुआ तरीका है, इसको समझ लें आप, इस बात को नोट कर लें। ये बिदअत का काम है, ये गुमराही का काम है। मैंने कुछ मिसालें देकर समझाई ना। मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़ना है तो कितने रकात पढ़ना? 3 ही पढ़ना, उसमें चौथी शामिल करना, ये बिदअत, ठीक है ना? जैसे नमाज जनाजा है, उसमें सजदा है, रुकू है? नहीं है, उसमें रुकू और सजदे को ऐड कर ले तो मुझे अच्छा लग रहा बोले तो ये बिदअत। ये नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ना हमारे साहबा ने किया, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरीके को किया। इस बात को समझ लेकर चले। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन सा काम करने का, कौन सा नहीं करने का, इसे कैसा पहचानेंगे? इसको पहचानने का बेस क्या है? थर्मामीटर कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जाता हूं। लन तजिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं बनोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कुरान। काम कर रहे हो, देखो क्या अल्लाह ने इस काम को मुझे करने का हुक्म दिया है? नहीं दिया है तो समझो ये काम अल्लाह को पसंद नहीं है। दूसरा बेस, वो सुन्नत रसूली, अल्लाह के नबी की सुन्नत और उसका तरीका। सुन्नत बोले तो तरीका, सुन्नत का मीनिंग क्या? तरीका। क्या ये मेरे नबी का तरीका है? अच्छा, नबी का तरीका नहीं। नबी के सहाबा का तरीका है? नहीं है। ताबईन का तरीका है? नहीं है। जब इन तमाम लोगों ने इस तरीके को फॉलो नहीं किया है तो मुझे भी फॉलो नहीं करना चाहिए। ये थर्मामीटर है गलत और सच को तोलने का, किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह। इसको पहचाने हम। नहीं मालूम है तो उलमा है आपके पास, उलमा से पूछें, वो बताएंगे आपको इंशाअल्लाह, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। दूसरी बात देखो जी, जब कोई कौम मुसलमान की दीन के अंदर एक नई बात लेकर आती है जिसे बिदअत कहते हैं, उसका नुकसान कितना बड़ा होता है इसको समझ लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अहदस कौमुन बिदअतन इल्ला रुफिअ मिस्लहा मिनस सुन्नति। जब मुसलमान कौम सुन्नत को छोड़कर बिदअत को जिंदा करती है, बिदअत को इख्तियार करती है, तो फरमाया अल्लाह पाक उनसे सुन्नतों को उठा लेते हैं। छोटी छोटी मिसाल, हमारी कौमों ने
छोटी मिसाल देकर बात समझाता हूं। हमारी कौमों ने मस्जिद में निकाह करना सुन्नत था, इसे छोड़ दिया और हॉलों में निकाह करने का मिजाज बना दिया। आज मस्जिदों में निकाह हमें नजर नहीं आ रहे। छोटी मिसाल, बात समझ में आई? तो ये सुन्नत क्या हो गई, हमसे उड़ते चली गई। दूसरी मिसाल, आज हमारी कौम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने मिसवाक किया था, मिसवाक सुन्नत है ना, ब्रश को जिंदा किया तो मिसवाक क्या हो गई, हमसे मरने लगी। तो जब कोई मुसलमान कौम बिदअत को इजाद करती है तो सुन्नत उनके अंदर से अल्लाह उठा लेता है। और क्या फरमाया, कयामत तक वो सुन्नत उन तक पलट कर वापस नहीं आती। ये नुकसान होता है बिदअत को इख्तियार करने का। बोलो किसकी समझ में आई बात? ये है। और दूसरी बात, एक आदमी ये जानकर भी कि ये काम हमारे दीन का नहीं है, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है, फिर भी उसे करता है, बिदअत को करता है, तो क्या फरमाया, नुकसान देखिए। हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इब्ने माजा की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सौमन वला सदक़तन। दीन के अंदर बिदअत के कामों को इख्तियार करने वाला, दीन के अंदर नई नई बातों को इख्तियार करने वाला, इसके लिए नुकसान क्या है ये सुन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बिदअत को इख्तियार करता है, सुन्नत को छोड़ देता है, अल्लाह पाक उसके रोजों को कबूल नहीं फरमाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला सदक़तन, और अल्लाह उसके सदकों को भी कबूल नहीं फरमाते। कबूल नहीं फरमाते का मतलब क्या है, हमें सदका दे को, अगर बिदअत का काम कर रहे हैं हमें सदके का सवाब नहीं मिलेगा। हमें सदका, हमें रोजा रख को बिदअत का काम कर रहे हैं, हमें क्या नहीं मिलेगा, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला हज्जन, बहुत बड़ी बात, इसको सुन ले। हमें बिदअत को मामूली समझ को कर देते, गुनाह है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन तहदी इलन नार, और हर बिदअत जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। आगे फरमाया, वला हज्जन, उस बंदे का हज भी कबूल नहीं करते अल्लाह। हज कितनी बड़ी इबादत, क्या फरमाया गया हज के बारे में, मन हज्ज फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु। जो आदमी हज करता है उसके अंदर झगड़ा नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, अल्लाह के वास्ते हज करता है, सब्र करते हुए हज करता है, तो वो हज से ऐसा लौटता है कि उसकी मां ने आज उसको जनाता है, नहीं, गुनाहों से पाक हो जाता है। लेकिन कोई आदमी हज कर रहा है लेकिन साथ में बिदअत का भी काम कर रहा है, तो समझ लेना इस बात को, अल्लाह उसके हज का थोड़ा भी सवाब नहीं देंगे उसको। बिदअत की इतनी खतरनाक नहुसत है, हज जैसी इबादत कबूल नहीं होती। तो इंशाल्लाह क्या नियत करते हैं, आज से सुन्नतों को जिंदा करेंगे, बिदअतों को इंशाल्लाह क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ऐसी जगह जाएंगे नहीं जहां क्या काम हो रहा है, बिदअत का काम हो रहा है। आगे क्या फरमाया, वला उम्रतन, आदमी बड़े शौक में उम्रा करता है, बड़ी दिलचस्पी से, बड़ी हसरत से अल्लाह के घर को देखने के लिए जाता है, अल्लाह बिदअती का उम्रा भी कबूल नहीं फरमाते। आगे चलिए, आगे चलिए, वला जिहादन, अल्लाह के रास्ते में कोई अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जिहाद को जाए, अल्लाह ऐसे को उसके जिहाद का भी सवाब नहीं देते जो बिदअती हो, जो दीन के अंदर नवी नवी बातें लेको आता हो। उलमा से पूछिएगा, उलमा आपको रहनुमाई करेंगे। आगे क्या फरमाया, आगे की बात सुनने के बाद ऐसा लगेगा इंशाअल्लाह आज से हम बिदअत छोड़ देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सुन्नत जिंदा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हमें सुन्नत बोले तो क्या समझे, बोलो जोहर से पहले की 4 रकात, जोहर के बाद की रकात। हमारी नजर में सुन्नत इतने है, सुन्नत अल्लाह के नबी के सिर्फ नमाज के तरीके को सुन्नत नहीं कहते, जिंदगी के तरीके का नाम सुन्नत है। निकाह ये मुआशरती सुन्नत है नहीं है? और ऐसी बहुत सी सुन्नतें हैं, इसको पहचानिएगा, उलमा से पूछिएगा। वला सरफन, ये बात सुनने के बाद इंशाअल्लाह आज से बिदअत छोड़ देंगे। वला सरफन, फरमाया जो आदमी बिदअत का काम करता है या बिदअत को जिंदा करता है या बिदअत के काम में मुब्तला है, वला सरफन, अल्लाह ऐसे आदमी की फर्ज नमाजें भी कबूल नहीं करते।
वला सरफन, ये बिदात की नहूसत। आगे क्या फरमाया, वला अदलन, अल्लाह ऐसे आदमी की नफिल भी कबूल नहीं करते। ये है बिदात की नहूसत। अच्छा, बिदात कहते हैं दीन के अंदर नई बात को पैदा करना। जो कोई आदमी बिदात का काम करता है, गोया कि वो अल्लाह के नबी को, सहाबा को चैलेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? बिदअत के माने मैंने क्या कहा, दीन के अंदर नई बात को लेकर आना, इसके माने बिदअत। नबी को चैलेंज करता है बिदअती। बिदअती आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और खुद नबी को चैलेंज करता है। वो चैलेंज कैसा? चैलेंज का मतलब समझो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आदमी दीन के अंदर कोई नई बात को दाखिल करता है, किसकी बात को? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए, बराबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आप उठाकर देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश का दिन यानी मीलाद का दिन कभी नहीं मनाया। अगर हम उसे मना रहे हैं तो समझ लो हम दीन के अंदर नई बात पैदा कर रहे हैं, जो कि हमारे नबी ने कभी नहीं किया, जो कि हमारे नबी के सहाबा ने कभी नहीं किया। नबी की कुछ सगी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका ने कभी नहीं मनाया। मनाने का अगर हक किसी को होना चाहिए था तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, मनाने का हक होना चाहिए था। तो आपके दामाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को होना चाहिए था, जबकि इन्होंने खुद नहीं मिलाद मनाया। तो मुझे, तुम्हें किस कुरान ने, किस नबी ने इजाजत दी, बताओ? तो बिदअती आदमी चैलेंज कर रहा है नबी को, सहाबा को। वो चैलेंज किस तरह कर रहा है? भाई एक सवाल करता हूं, इसका जवाब देना। अल्लाह के नबी और सहाबा ज्यादा दीन समझे थे या हम समझे? बताओ। जवाब चाहिए, जवाब मतलब है। किसने दीन को ज्यादा समझा था? लाजिमन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के नबी, और पूरे आलम में हुजूर के तरीके पर अमल किया जाता है। तो मालूम यह हुआ अल्लाह के नबी ज्यादा दीन को जानने वाले थे। अगर दीन के लिए ज्यादा किसी ने कुर्बानियां दी है तो वह सहाबा ने कुर्बानियां दी है। तो किसका तरीका उम्दा हुआ? सहाबा का और नबी का तरीका उम्दा हुआ, और दीन ज्यादा सहाबा ने और नबी ने समझा। बिदाती आदमी दीन के अंदर नई बात को पैदा करके सहाबा को और नबी को ये चैलेंज दे रहा है, तुम्हें बराबर नहीं करे दीन का काम, मैं कर रहा हूं, सो देखो ये बराबर काम। यानी तुम्हें आधा आधा कर को गए, ये तुमना मालूम नहीं था, ये मैं कर रहा हूं, अब दीन पूरा हुआ। नौजुबिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह ने आयत नाजिल की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये फरमाया, ए नबी जी, आज के दिन मैंने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया, इसके बाद कोई नया दीन नहीं आएगा, इसके बाद कोई नया तरीका नहीं आएगा। अगर इसके बाद कोई नया तरीका इख्तियार करने की कोशिश करता है, वो गुमराह है, वो बिदाती है। बात समझ में आई? और क्या फरमाया, वो रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हारा दीन इस्लाम है, इस बात पर भी राजी हो गया। तो मालूम यह हुआ आज के बाद जो तरीका चलेगा वो इस्लाम का और आपका बताया हुआ तरीका चलेगा, वो अल्लाह के कुरान का बताया हुआ तरीका चलेगा। उसके बावजूद भी अगर उसके अंदर कोई शख्स नई बात पैदा करने की कोशिश करता है तो वो बिदअती है। और बिदअती की न हज कबूल होता है, न रोजा कबूल होता है, न फर्ज कबूल होते हैं, न नफले कबूल होती है। अल्लाह हम तमामों की हिफाजत फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह अमल। ये पूरा रबीउल अव्वल का महीना इसी उन्वान पर इंशाअल्लाह बात होगी, आइंदा सीरत पर बात होगी, अल्लाह के नबी पैदा कैसे हुए और फिर अल्लाह के नबी से पहले के हालात कैसे थे, इंशाअल्लाह यही सिलसिला चलेगा। इस बात को समझ लो, बहुत शान से मनाते हैं हम लोग। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो क्या करना, बोलो? अल्लाह के नबी को नमाज से मोहब्बत थी। किससे मोहब्बत थी? सच बताओ, हमारी जिंदगी में 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से हो रही? मोहब्बत है तो नमाजों की पाबंदी से सबूत दो। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया,
जुइलत सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज को क्या बनाया गया है? मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई है। ऑटो के पीछे लिख डाले आदमी, ठीक है, स्टेटस पे लिख डाले आदमी, लेकिन अमली जिंदगी में नहीं आई ये बात। नबी से मोहब्बत है तो इंशाल्लाह आज से नियतें करो कि अल्लाह के नबी को नमाज बहुत महबूब थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुद मेराज करके नमाज का तोहफा दिया। उस चीज को आज के बाद इंशाल्लाह हम जाया नहीं करेंगे। नबी से मोहब्बत का यह सबूत है। नबी से मोहब्बत है तो आज से इंशाल्लाह ये इरादा करो हम हमारी बेटियों बेटों का निकाह मस्जिद में कराएंगे। ये है मोहब्बत। नबी से मोहब्बत है तो आज से अपने बाल जो है ना अंग्रेजों की तरह नहीं रखेंगे, सुन्नत के मुताबिक रखेंगे। नबी से मोहब्बत है तो आज से इरादा करो इंशाअल्लाह चेहरा भी किस तरह रखेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। दावा करना बहुत आसान है जनाब, आशिक रसूल का दावा करना बहुत आसान है, मगर आशिक रसूल बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फजर की नमाज छोड़ को झंडा लहराने जाते हैं हमारे नौजवान, उनकी टोपियां उठा कर देखो अंग्रेजों के बाल है। कहां आशिक रसूल है ये? क्या छोड़ा इन्हें? फजर छोड़ा। और नमाज अल्लाह के नबी को बहुत महबूब चीज थी। मरजुल मौत का वक्त है, मरजुल वफात का वक्त है, यानी बीमारी इतनी बढ़ गई कि आजकल में इंतकाल होने वाले थे। दो सहाबा का सहारा लेकर मस्जिद नबवी को पैर घसीटते हुए आए हैं, उम्मत को पैगाम दिए हैं, बीमारी जैसी भी हो तुम्हें नमाज माफ नहीं है। उम्मत ने आज वो पैगाम नहीं लिया। चिल्लाना, चीखना, होरना बजा लेकर रोडा में जाना, लोगों को तकलीफ देना, ये नबी के, वो नबी जिसने कभी भी एक फर्द को भी तकलीफ नहीं दी, आज उसकी पैदाइश के दिन ही हम सबको तकलीफ देते हैं। अरे नबी पर हमारे क्या क्या एहसानात है बताओ। नबी ने कभी हमें गलत रास्ता नहीं बताया। हमारे नबी तो कौन थे? वो थे जिन्होंने बैतुल खला जाने का तरीका बताया। हमारे नबी कौन थे? वो जिसने बैतुल खला से आने का तरीका बताया, पेशाब करने का तरीका बताया। यहां तक कि मेरे अजीजों दोस्तों, जिंदगी के हर एक लम्हे का तरीका बताया। थूकना कहां है यह भी बताया। अपने मां बाप से कैसे बात करना है यह बताया। जो नबी इतना सब कुछ बताकर जा सकता है, क्या बोलो? जो नबी इतना सब कुछ बताकर चले गए, पेशाब बैठ को करना कि खड़ को करना? बैठ को करे तो क्या तरतीब है? पानी कैसा लेना, पानी कैसा पकड़ना, गुस्ल कैसा करना, वजू कैसा करना, ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर चले गए। तो बताओ क्या अल्लाह के नबी ये भूल गए कि मेरी पैदाइश का दिन कैसे मनाना? ये भूल को चले गए। जो नबी सब कुछ बता के चले जा सकता है, थूकने का तरीका बताकर जा सकता है, अपनी बीवी से कैसे मोहब्बत करना है ये बताकर चले गए हैं, बच्चों से कैसे मोहब्बत करना है ये बताकर चले गए हैं, कारोबार कैसे करना है ये बताकर चले गए हैं, चप्पल कैसे पहनना है ये बताकर चले गए हैं। अरे यहां तक हमारे बदन के अंदर जो गंदगी होती है ना, जो प्राइवेट बाल होते हैं, उसको किस तरीके से साफ करना है ये पाकी का तरीका हमारे नबी बताकर चले गए। जो नबी इतनी बारीक बारीक चीजें बता सकते हैं, क्या वो नबी यह बताना भूल गए कि मेरी पैदाइश का दिन मनाना भूल जाओ? ऐसा नहीं हो सकता था ना। तो मेरे अजीजों जरा सोचो, जरा सुकून से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, किधर जा रहे हैं हम लोग। इसीलिए आज से नियत करो कि इंशाअल्लाह सुन्नत को जिंदा करेंगे, बिदात को खत्म करेंगे। अच्छा जी, जो आदमी बिदात पर अमल करता है ना, उसके लिए नुकसान क्या है? देखो, किस किस को नबी के हाथ से हौजे कौसर पीना है? हाथ उठाओ। पिएंगे नहीं? इंशाअल्लाह हमारे नबी पिलाएंगे, हम पिएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन थोड़ी कुर्बानी, थोड़ा कुर्बानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी फरतकुम अलल हौज, मैं हौज पर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। हौज बने हौजे कौसर। हौजे कौसर क्या है? एक मर्तबा अगर किसी ने हौजे कौसर से पानी पी लिया, उसे कयामत तक प्यास नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। है हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और क्या फरमाया? मन मर्रा अलैहि शरीब व मन शरीब लम यज़मअ अबदा,
जो आदमी हौज़े कौसर से आएगा मेरी उम्मत में से और वो पानी पिएगा, वो पानी पीने के बाद उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये भी आगे रिवायत में आया, लयरिदन्न अक़वामुन अअरिफुहुम व यअरिफुनी, मेरे सामने कुछ कौम ऐसी भी आएगी मैं उन्हें पहचानूंगा, वो मुझे पहचानेंगी, लेकिन होगा क्या, सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, फिर मेरे और उनके दरमियान एक चीज आड़ कर दी जाएगी, लेकिन मेरे हाथों से वो लोग हौज़े कौसर नहीं पी पाएंगे। नबी के हाथों से हौज़े कौसर का पीना हर मुसलमान की अजमत है, हर मुसलमान की शान है। और नबी की शान ये है, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, मैं मेरी उम्मतियों को उस दिन जिस दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, मैं मेरी उम्मत के लोगों को उनके वजू के निशानात की वजह से पहचानूंगा, और मेरी उम्मत को पहचानूंगा कि वो लोग मेरे हाथों से क्या पिएंगे, हौज़े कौसर का पानी पिएंगे। लेकिन क्या होगा, हौज़े कौसर पीकर कुछ लोग जा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे और उनके दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाएगा। फ़अक़ूलु, मैं कहूंगा, या अल्लाह इन्नहुम मिन्नी, ये तो मेरी उम्मत में से है, फिर मेरे और इनके दरमियान पर्दा कौन सा, क्यों पर्दा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा, ए नबी जी इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, ए नबी जी तुम नहीं जानते तुम्हारे इंतकाल के बाद, तुम्हारे इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम्हारी सुन्नतों की वाट लगाने वाले यही लोग थे, तुम्हारी सुन्नतों को मुर्दा बनाने वाले यही लोग थे, दीन में नए नए तरीके इख्तियार करने वाले, दीन में नए नए तरीकों को ईजाद करने वाले, बिदअत का काम करने वाले। ए नबी जी, ये आपके पैदाइश के दिन पर डीजे लगाकर नाचने वाली उम्मत यही थी, आप इनको हौज़े कौसर पिलाओगे? अल्लाह, नहीं पिला सकते आप। इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका, ए नबी जी तुम्हें इन्होंने कितनी तकलीफ दी है, ए नबी जी आप इनके वास्ते पूरी पूरी रात खड़ के दुआ किए हैं और बोले हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, लेकिन इस उम्मत को अकल नहीं आई, इन्होंने तुम्हारी सुन्नतों को ही जला डाला, इसीलिए ये आज तुम्हारे हाथों से पानी पीने के हकदार नहीं है। कौन हकदार नहीं होंगे? वो जो बिदअत का काम करते हैं, जो दीन के अंदर नहीं। इंशाअल्लाह क्या इरादा है? हौज़े कौसर अल्लाह के नबी के हाथों से पीने का इरादा है, तो आज से बिदअत को छोड़ दो, सुन्नतों को इख्तियार करो। आगे फरमाया, ये बात अल्लाह के नबी सुनेंगे और कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, फटकार हो, लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने मेरे इंतकाल के बाद मेरे दीन को बदल दिया, मेरे तरीके को बदल दिया। आज मैं मेरे हाथों से इन लोगों को पानी नहीं पिलाऊंगा। ये होगा नुकसान बिदअत का आखिरत में। अल्लाह मुझे और आपको तमामों को इससे बचाए। अल्लाह हमें सुन्नतों को जान जान कर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।